آپ کو بتائیں کہ بے جا جرمانوں اور چلانوں سے تنگ منی گڈز ٹرانسپورٹرز فیصل آباد کی پہیہ جام ہڑتال۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کی کال پر ٹوبا کے ٹرانسپورٹرز نے بھی گاڑیاں روک لی۔ ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک ڈٹے رہنے کا اعلان، کل سے سڑکیں بند کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے ہاتھوں پیس کر رہ گئے ہیں، گاڑی موٹر وے سے لے کر جائیں تو 10 سے 20 ہزار روپے تک جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جون سی گاڑی موٹر وے پہ ان ہوتی ہے نا، تھوڑا سا ویٹ بھی زیادہ ہونا، 6-3.5 ویٹ پاس ہے، تو جب تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہونا تو یہ 10,500 روپے کا چلان کر دیتے ہیں۔ جب ہم ادھر سے کنڈا کراتے ہیں، ہمارے ٹوبا ٹیکسی نا لوڈ کر کے گاڑی فیکٹری سے باہر نکالتے ہیں، ہمارا ویٹ پورا ہوتا ہے۔ جب ہم موٹر وے پہ ان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، 200-300 روپے لیتے ہیں، وہ گاڑی کو نا موٹر وے چڑھا دیتے ہیں۔ جنگ میں منی مزدہ گوڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال میں شہر کے بیشتر ٹرانسپورٹرز بھی احتجاجاً شامل ہو گئے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ بے جا بھاری چلان سے جان چھڑائی جائے، پیٹرولنگ پولیس سے چلان کے اختیارات واپس لینے کا بھی مطالبہ۔ مطالبات یہ ہیں کہ روڈ کے اوپر گاڑیاں نہیں چلنے دے رہے، شہر میں کہیں گاڑی نہیں جا سکتی، جی ڈی روڈ پہ، فیصل آباد روڈ، ملتان روڈ، کہیں نہیں گاڑی جانے، چلان کرتے ہیں 2,000 روپے کا، 4,000 روپے کا۔ جی ٹی روڈ فیصل آباد گجرانوالہ، فیصل آباد گجرانوالہ لاہور میں 20-20 ہزار کا، 10-10 ہزار روپے کا چلان کر رہے ہیں سر۔ چنیوٹ میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال پہیہ جام رہا، ایکسل لوڈ اور بھاری جرمانوں کے معاملے پر ٹرانسپورٹرز پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں اتنی کمائی نہیں جتنے جرمانے کر دیے جاتے ہیں، ٹریفک اور موٹر وے پولیس ناحق چلان کرتی ہے۔ پورے پنجاب میں جو ہڑتال ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی چنڈیگڑھ میں بھی ہم ہڑتال کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہماری گاڑی جب باہر جاتی ہیں تو یہ پولیس والے جو ہیں، جتنے بھی وارڈن والے ہیں، موٹر وے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ چلان کرتے ہیں، بہت زیادہ چلان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ ہڑتال کر رہے ہیں کہ ہمارے چالان جو ہے نا یہ کم کیے جائیں اور ہماری گاڑیوں کو تنگ نہ کیا جائے، ڈرائیوروں کو تنگ کیا جاتا ہے خام کا بے جا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ غریب کو نوالے کے لالے پڑنے لگے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں دالوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، دال مونگ 280 روپے سے 330 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ دکاندار بھی بلبلا اٹھے، کہتے ہیں مہنگائی میں کمی کا حکومتی دعویٰ صرف کاغذوں کی حد تک ہے۔ یہ صرف کاغذی مہنگائی کم ہوئی ہے، ویسے منڈی میں جا کے دیکھ لیں کہ چیزیں جو ہیں انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ دال چنا کی قیمت میں 150 روپے فی کلو اضافہ سامنے آیا۔ دال چنا کی قیمت 230 سے بڑھ کر 380 روپے فی کلو ہو گئی۔ کالے چنے بھی 150 روپے اضافے سے 400 روپے کلو پر جا پہنچے۔ شہری کہتے ہیں دالوں نے ہی قیمتیں خرید ختم کر دی ہے۔ دالیں وغیرہ جو ہیں یہ بھی ان کے بھی ریٹس کافی زیادہ ہو گئے ہیں، مرچیں، مسالہ جات، سب چیزیں مہنگی ہیں، کوئی چیز کم ریٹ پہ نہیں ملتی، صرف زبانی کلامی دعوے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی۔ شہریوں نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے غلہ منڈی میں قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور دوسری جانب چکی میں گندم کے ساتھ غریب بھی پسنے لگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کے بھاؤ بڑھنے سے آڑتیوں اور ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو گئی۔ گندم فی من قیمت 2850 روپے سے بڑھ کر 3250 روپے کر دی گئی۔ ایک ماہ کے دوران چکی آٹے کی قیمت میں دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ مجبوراً ہمیں آٹے کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے، ہم نے 90 سے 100 روپے کلو فی کیجی آٹا کر دیا ہے۔ اگر مسلسل قیمتیں بڑھتے رہیں تو آٹا اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا۔ گندم کی قیمت کنٹرول نہ کی گئی تو چکی کا آٹا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ تاحال موجود ہے۔ کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجلی بلوں کی اقساط کا معاملہ، نادہندہ صارفین کے گھروں کی بتی گل۔ تفصیلات میں رپورٹ دیکھیے۔ حکومت نے ریونیو بڑھانے کے لیے عوام پر سختیاں مزید بڑھا دیں۔ گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشنز پر بلوں کی اقساط بند ہونے سے عدم ادائیگیوں پر فیسکو میں روزانہ ہزاروں صارفین کے کنیکشن کٹنے لگے۔ اقساط کی بندش سے ڈی کنیکشن رپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ فیسکو نے صارفین کے مسائل سے متعلق پی آئی ٹی سی کو آگاہ کر دیا۔ اقدام سے 53 لاکھ صارفین اقساط سے محروم ہو چکے ہیں۔ بجلی بلوں کی اقساط نیپرا کی ہدایت پر بند کی گئیں۔ سہولت بحالی کے لیے فیسکو نے پی آئی ٹی سی سے درخواست کر دی۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور دوسری جانب ڈیمانڈ نوٹس کے نام پر وصولیوں کو محکمہ سوئی گیس فیصل آباد نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ سوئی گیس کنیکشن کے حصول پر پابندی فیصل آباد کے شہریوں کے لیے دوہری درد سر بن گئی۔ پیسے بھی چلے گئے اور سہولت بھی نہ ملی۔ کئی سال قبل ڈویژن بھر میں 1 لاکھ سے زائد شہریوں نے نئے کنیکشن کے لیے مجموعی طور پر کروڑوں روپے ڈیمانڈ نوٹس تو محکمہ کو جمع کروائے، مگر وہ دن اور آج کا دن نہ تو شہریوں کو کنیکشن ملے اور نہ ہی جمع کرائی
गई लाखों रुपए की रकम। मुतासरा शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर गैस कनेक्शन फराहम करे। सुई गैस हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने नए कनेक्शन पर पाबंदी आयद रखी है। इजाजत मिलते ही मीटर लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। किसान कार्ड चला या नहीं, मुअम्मा ना समझने का ना समझाने का, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत फैसलाबाद के किसानों के कार्ड फाल करना भूल गई। फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत भी मैदान में आ गया। नायब सदर शाहिद मुमताज बाजवा ने कहा कि गंदम की बुवाई का वक्त आ चुका है। वक्त पर कार्ड फाल न हुए तो हुकूमती मंसूबा नाकाम हो जाएगा। जो मेरी मुख्तलिफ दोस्तों से बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जब हम अपने मुतलका जो अदारे हैं उनसे बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जी अगले हफ्ते में आपका जो एक्टिव हो जाएगा। तो किसानों के लिए परेशानी ये है कि अभी उनको खाद और बीज के लिए पैसे चाहिए। अगर आपने कार्ड जारी कर दिए हैं और उनको एक्टिव नहीं कर रहे, उनका जो बुआई का जो मौसम है वो गुजर जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है वो कार्ड उनके लिए बेकार होगा। चिन्योट में काश्तकारों को किसान कार्ड तो मिल गए मगर रिलीफ मिलना शुरू न हुआ। कार्ड एक्टिव होने से पहले ही रोज शहर के अक्सर डीलर्स की मशीनें एक्टिव न हो सकी और किसान डीलर्स महकमा ज़राअत के दफातर के माबैन शटल कॉक बने रहे। ज़रूरी अफसरान का कहना है कि मशीनों की एक्टिवेशन के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कल से किसान कार्ड का इजरा कर दिया है, लेकिन हम कुछ दुकानदारों के पास गए हैं, उनका कहना ये है कि अभी तक हमने मशीनरी नहीं चालू की और ना ही कोई भी जो हैं खाद डीलर कोई खाद मुहैया कर रहे हैं किसानों को। तो ऐसे किसान कार्ड का क्या फ़ायदा है कि जिससे हमें कोई सब्सिडी किसान को नहीं मिलनी। तो ये हमारी गुजारिश है कि इसे फिलफौर हल किया जाए मसले को। फसलों की बुवाई के लिए किसानों को बिलासूद कर्जे की फराहमी, जंग के किसानों की सुनी गई। कार्ड फाल हो गए। किसान जिला भर के 70 से 60 डीलर से खरीदारी कर सकेंगे। गला मंडियों में भी सहूलत सेंटर कायम कर दिए गए। बगैर पेमेंट के आपको एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका ये फ़ायदा है कि बज़ाहिर आपके पास अगर पेमेंट नहीं है, आप अपने मतलब कि खाद को ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं या कोई स्प्रे वगैरह ले सकते हैं। बज़ाहिर तो इस चीज़ का किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कार्ड मिल गया सानू जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। शोरकोट में भी किसान कार्ड को फाल कर दिया। तमाम डीलर्स को POS मशीनें फराहम। काश्तकार कार्ड पर किसी भी डीलर से ज़रूरी खरीदारी कर सकेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इजाज साले का कहना था कि अब काश्तकार बीज और स्प्रे के लिए किसान कार्ड पर ही खरीदारी कर सकते हैं। लड़कियों को महफूज तालीमी माहौल फ्राहमी, महकमा हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्टल्स सरबराहान को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक तालीमी इदारों और हॉस्टल्स में सिर्फ खातीन अमला तैनात किया जाएगा। तैनात मर्द अमले की निगरानी कैमरे और सीनियर खातीन स्टाफ करेंगी और कैमरा रिकॉर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक महफूज रखने का भी हुक्म दिया गया। फैसलाबाद के अलहमद निशात अस्पताल में ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना ही एक्सरे मशीन, तफसीलात इस रिपोर्ट में। कहने को पाकिस्तान का मानचेस्टर फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है जहां शहरियों को तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं, मगर यहां शहरियों को सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। 50 बेड पर मुश्तमिल अलहमद अस्पताल निशाताबाद में स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो दूर की बात, जनरल डॉक्टर्स की भी कमी है। जनरल सर्जरी, लेबर रूम, चाइल्ड और आई डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर्स मुयसर नहीं। और तो और रात के वक्त किसी मरीज को इमरजेंसी वार्ड जाना पड़ जाए तो वहाँ भी डॉक्टर दस्तयाब नहीं होते। मरीज एक्सरे तक की सहूलत से महरूम हो हैं। दुखी मरीज तो तिब्बी सहूलियात ना मिलने पर बिलबिला उठे और हुकूमत से मुतालबा किया कि अस्पताल के तमाम शोबों में 24 घंटे सहूलियात मुहैया की जाएं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पे ना कोई ऑपरेशन का सिस्टम निज़ाम ऐसा नहीं है कि जो ना लोगों के ऑपरेशन किए वगैरह किए जाए, लेकिन ऑपरेशन वाला निज़ाम इधर कोई नहीं है। ऑपरेशन वगैरह नहीं होते, गायनी के ऑपरेशन नहीं है। एमरजेंसी भी दिन के टाइम है, रात को कोई एमरजेंसी नहीं है। बाकी गायनी के ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे। ये मतलब सहूलतों का फुकदान है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि हुकूमत जल्द 6 माह के लिए स्पेशलिस्ट समेत दीगर डॉक्टर्स भर्ती करने जा रही है। अलहमद अस्पताल इलाके का बड़ा अस्पताल है जिसमें रोजाना तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद और चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए अफसरान मुतहरिक, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम। सीईओ हेल्थ ने मुलाजमीन की 15 रोज तक छुट्टियां बंद कर दी। मुलाजमीन के तबादले भी रोक दिए। माइक्रो प्लान में कोई तब्दीली भी नहीं हो सकेगी। कमिश्नर चनियोट सफीउल्लाह गोंदल का सीईओ कम्प्लेक्स का दौरा। पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग का जायजा लिया। सिविल डिफेंस एजुकेशन दफातर का भी मुआयना किया। बोले इंसदादे मुहिम में माइक्रो प्लान पर अमल यकीनी बनाया जाए। जंग में स्मोक के मौसम में बड़ा खतरा आन टपका। टीबी क्लिनिक्स पर रोजाना 90 से ज्यादा मरीज आने लगे। डॉक्टर इर्तजा शाह कहते हैं टीबी के मरीज मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। टीबी का मर्ज जो है इसके फैलने की मेन वजह ये होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कि जैसे ही कोई शख्स खांसी करेगा उसके मुंह से उड़ने वाले लुआब के जो नन्हे कतरे होते हैं उसके ज़रिए जरासीम जो है दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है एहतियात यही है कि जो जिस शख्स को खांसी है वो मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करे। टोबा टेक्सिंग में शुगर के मरीज रुल गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शुगर का टेस्ट 6 माह से बंद। प्राइवेट लेबॉरेटरीज की चांदी। शहरी 1500 का महंगा टेस्ट करवाने पर मजबूर। मरीज बोले निजी लैब पे टेस्ट नहीं करवा सकते। सरकारी लैब हुकाम किट्स की कमी का रोना रोने लगे। चिन्योट में इंतजामी और सर्विसेज से मुतालिक नशिस्तें खाली हैं। तफसीलात क्या हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में सरकारी दफातर में स्टाफ और अफसरान की शदीद किल्लत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, ACHR, जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू, अलोनी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की सीटों पर रेगुलर तैनातियां न हो सकी। बल्दियाती निजाम में भी कहतुल रिजाल की कैफियत। चिन्योट में म्यूनसिपल सर्विसेज की डिलीवरी इंतहाई मुतासिर। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, चीफ ऑफिसर लालियां का काम एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। अफसरान के साथ साथ ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ की भी शदीद कमी है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन सिटी 41 चिन्योट। चालान बरवक्त जमा न करवाने पर 11 थानेदार मुअत्तल। मुअत्तली के अहकामात SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब ने जारी किए। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर्स मोहम्मद नवाज और अख्तर अली शामिल। ASI साबिर अली, मोहम्मद आसिफ, जुल्फकार अली, ताहिर नसीर, मजहर अब्बास, आसिफ मुमताज, जावेद इकबाल, मोहम्मद एहसान और राशिद लतीफ भी मुअत्तल। मुअत्तल थानेदारों को फिलफॉर पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। फैसलाबाद पुलिस सरकारी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी नाकाम। PHA स्टोर जनाह बाग से चोर लाखों का सामान ले उड़े। चोरी शुदा सामान में 22 लोहे के ग्रीज और 22 पोल, 2 झूलों समेत स्क्रैप और दीगर सामान भी शामिल। जुल्फकार अली स्टोर कीपर की मुद्दत में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद और जंग में सफरी सहूलियात पर भारी फंड्स लगाने की तैयारी कर ली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की पक्की गलियों और टफ टाइल्स के लिए 32 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब। PEC में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ठेके के हल। फैसलाबाद के 37 इलाकों में गलियों की पुख्तगी और PCC स्कीमों पर काम होगा। सुबह 10 बजे टेंडरिंग होगी। काम 6 माह में मुकम्मल करना होगा। झंग के बक्कर रोड की 3 अरब 26 करोड़ रुपए से तामीर मरम्मत होगी। अलियाबाद बाईपास से शोरकोट तक सड़क पर काम होगा। 46 किलोमीटर तवील सड़क का इब्तदाई तखमीना तैयार। शहरी कहते हैं सड़क की टूट फूट के बायस शोरकोट तक का सफर शदीद मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं गड़ों के बायस गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचता है, हादसा भी होते हैं। हाईवे जंग ने टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया। शहरियों ने पेशरफ्त खुशाइंद करार दे दी। फैसलाबाद की खूबसूरती बढ़ाने वाले मॉडल अपना ही हुस्न खो बैठे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की खूबसूरती बरकरार रखना इंतजामी चैलेंज बन गया। मॉडल्स पर जमी धूल, मट्टी और गर्द साफ ना हो सकी। शहरियों ने हुकाम को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अदम तवज्जो के बायस मॉडल्स खराब होते जा रहे हैं। ये दूर से देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हम जैसे ही इसके करीब जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, इसको बहुत खस्ता हालत है इसकी हम शिकायत किससे करें। GTS चौक, स्टेशन चौक, समंदरी रोड पर लगे मॉडल्स तवज्जो के मुंतजिर हैं। इंतजामिया हुकूमती अहकामात के मुखालिफ समत में खड़ी नजर आने लगी है। शहरी कहते हैं टैक्सेस के पैसों से बनाए गए मॉडल्स को लावारिस छोड़ दिया गया है। प्यारे से मॉडल्स बनाए गए हैं, इनकी अच्छे से देखभाल नहीं की जा रही। इंतजामिया को चाहिए ये खूबसूरत दोबारा से बनाए जाएं। शहरियों ने मॉडल्स की हालत जल्द बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। के MPA शेख एजाज अहमद एडवोकेट के हमरा इलेक्शन 2025 डिस्ट्रिक्ट उम्मीद बराए जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन सैयद मोहम्मद वहाब शाह का ऐलान। जी सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह पाक की ब्लेसिंग समझता हूँ ये, और मैं थैंकफुल हूँ अल्लाह पाक का भी और तमाम दोस्तों का कि उन्होंने
अपना कॉन्फिडेंस का इजहार किया और मुझे वोट एंड सपोर्ट के लिए उन्होंने ऐलान किया। मैं समझता हूं जी लॉयल ग्रुप जो है वो तमाम हमारी बार का एक चेहरा है। प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं, तमाम के तमाम दोस्त प्रोफेशनल हैं, जो एक लंबा एक्सपीरियंस भी उनका माशाल्लाह हर दोस्त का कम से कम 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, और मुकम्मल प्रोफेशनल जो है दोस्त वो उन पे मुश्तमिल है लॉयल ग्रुप। तो उनकी तरफ से मेरे पे अपना ट्रस्ट डिपोज करना और मुझे बतौर कैंडिडेट सेक्रेटरी DBA फैसलाबाद नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे वोट एंड सपोर्ट का ऐलान करना, मेरे लिए ये एक ऑनर भी है, एक अचीवमेंट भी है, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक की एक बिलखसूस ब्लेसिंग भी है जी मेरे पे। तो